So good morning or a good afternoon to all the students of class 7. So here in this video I'm going to discuss the exercise 5.2 and we will get our chapter 5, that is lines and angles, will get completed with this video. This is the last video for this chapter. So in the question number 1 it says state the property that is used in each of the following statements. Okay. So here you can see that the two lines A and B and these are two transversal. This is also a transversal. This is also a transversal. इससे आपके angle form angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. They have named that. Okay. Then they are saying that हमें property बतानी है जो इन statement में use हुई है. They are saying if A is parallel to B, अगर A B के parallel है, then angle 1 is equals to angle 5. तो angle 1 angle 5 के equal है. So we have to tell the property angle 1 angle 5 के equal है. So you can see that angle 1 5 के equal है. It means what is the property? The property is corresponding angles. Okay. So these are equal by the corresponding angles. Next is if angle 4 is equals to angle 6, then A is parallel to B. They are saying अगर angle 4 angle 6 के equal हो जाए, then A become parallel to B, जो मैंने आपको अभी converse बताया था in the last video. ठीक है. So angle then this 4 is equals to C given है, then A is parallel to B. Then which property is used? The property is used that alternate interior angles are equal. है ना, हमने ये यूज़ किया कि alternate interior angles equal हैं तो आपकी lines parallel हो गई हैं. ठीक है. If angle 4 plus angle 5 is equals to 180 degree, एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम करके आप देख सकते हैं अगर 180 डिग्री आ रहा है एंड देन ए इज पैरेलल टू बी, इट मीन्स आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की? द प्रॉपर्टी इज यूज्ड इज इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री. Okay, class 7 I'm doing here on the book because to save your much precious time. Okay, you in your notebook you will write down the question, this statements you will write down, and as well as the explanation in very clear way. Okay, so you have to note down this question as well as the solution in your notebook. You will write the questions for the complete exercise in your notebook, class 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई. ये आप खुद करने वाले हैं बिकॉज मैंने ये आपको 2 एग्जाम्पल से समझा दिया है अभी इन द लास्ट वीडियो. इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो इससे आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 1 2 3 4 नेमिंग अलग है, 5 6 7 8 नेमिंग अलग है फिगर में, है ना, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहेगा. जैसे एंगल 1 कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल 5 के, एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल 6 के. ठीक है. तो आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. सभी पेयर्स लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के, जैसे मैंने अभी लिखे थे इन द लास्ट वीडियो. पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हियर यू कैन सी दैट एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 3, एंगल 2 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, है ना. सो वो आपको पेयर्स लिखने हैं इन द क्वेश्चन नंबर 2. Now in the question number 3 it says in the adjoining figure P is parallel to Q. Okay, it is given that P is parallel to Q and find the unknown angles, and this is the transversal. Okay, this is line intersecting P and Q at two distinct points. So this is your transversal. P is parallel to Q and these angles are formed. They are saying that find the unknown angles which are A, B, C, D, E, F, and this 125 degrees is only given. So this is I am solving for you. Try to understand the concept that how do we proceed. So क्लास 7 अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपके पास प्रोसीड करने के लिए और अपने सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए, दैट इज़ ए बी सी डी ई एफ एंगल्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं. आपने क्या क्या सीखा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यू कैन यूज़, लीनियर पेयर यू कैन यूज़. ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर. आफ्टर दैट पैरेलल लाइंस हैं पी एंड क्यू, तो आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होते हैं. तो 5 प्रॉपर्टीज तो मैंने ही आपको काउंट करा दी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, और आप सभी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. आप पहले क्या यूज़ करें बाद में क्या यूज़ करें दैट डज नॉट मैटर. कोई भी आप वैल्यू पहले या बाद में फाइंड करें, आपको सभी वैल्यूज निकालनी है. तो हियर यू कैन सी दैट ऑन दिस लाइन P
I can see clearly that angle E and this 125 degree is forming a linear pair, है ना, ये linear pair form कर रहे हैं, ये 180 degree है इनका summation because these are on the straight line. Okay, so we will just write that according to figure, जो भी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसका हमें ब्रैकेट में लिखना है, मेंशन करना है that what property we have used. According to the figure 125 degree plus angle E is equals to 180 degree linear pair. Okay, इतना आपको मेंशन करना है. So you will get angle E is equals to 180 degree. नाउ आपको ये इक्वेशन की तरह ही तो है जैसे आपने सिंपल इक्वेशंस में किया, तो 125 डिग्री इधर लेफ्ट साइड पर है, उधर ट्रांसपोज होगी, नेगेटिव में चला गया आपका 125 डिग्री एंड यू विल गेट हेयर 55 डिग्री. ओके, सो दिस इज योर 55 डिग्री इज एंगल ई. सो एंगल ई आपने फाइंड कर लिया 55 डिग्री. अब यहाँ पर आपका एंगल ई निकल चुका, देन यू कैन सी क्लियरली दैट एंगल ई इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल एफ. देख रहे हैं ना आप, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं. सो एंगल ई इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल एफ एंड ऑल्सो यू कैन सी दैट 125 डिग्री इज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर विद एफ ऑल्सो. ठीक है, तो किसी के माइंड में ये भी आ सकता था कि मैं पहले एफ निकाल लूँ फिर ई को वर्टिकली अपोजिट से प्रूव कर दूँ. ठीक है, सो you can write that also angle E is equals to angle F is equals to 55 degree vertically opposite angles. रीजनिंग ज़रूर लिखनी है आपको ब्रैकेट में, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स. सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपका एंगल F हो गया. Now you can see that these are parallel lines, this is transversal, then you can see that 125 degree, this 125 degree is corresponding to D, है ना, corresponding. मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करूं अगर, तब समझ में आया. देखो 125 डिग्री corresponding है D के, वैसे ही F corresponding है C के. ठीक, तो हम corresponding angles यूज करने वाले हैं, that is angle D is equals to 125 degree से corresponding angles. ठीक है ना, corresponding angles are equal. और आप ये भी लिख सकते हैं since P is parallel to Q, तो इसलिए corresponding angles फॉर्म हुए क्योंकि P Q के पैरेलल था एंड 125 डिग्री आपका D हो गया. सिमिलरली ऑल्सो एंगल F जो आपने यहाँ पर 55 डिग्री फाइंड किया ही है is equals to angle C is equals to 55 degree. Corresponding angles are equal. ठीक है, आप मेंशन कर चुके हैं since P is parallel to Q. तो आपका E हो गया, F हो गया, then 125 डिग्री के corresponding D हो गया, F के corresponding आपका C हो गया. Then you can see that C के vertically opposite है A, this is your C, है ना, दिस इज C की वर्टिकली अपोजिट है A और D के वर्टिकली अपोजिट है B. ठीक है, और ये भी देख सकते हैं कि E के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है A, E के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है A. तो आप कोई भी रीजनिंग यूज कर सकते हैं, लाइक यू कैन राइट दैट एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल A इज इक्वल्स टू 55 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, and now and the last remaining is your angle D is equal to angle B is equal to 125 degree vertically opposite angles. ठीक है, तो आपने सभी फाइंड कर लिए. अगर आप इन अ लाइन नीचे सभी एंगल्स की वैल्यू मेंशन कर देंगे, इट विल बी वेरी गुड टू यू. दैट इज, so we get angle A is equals to 55 degree, angle B is equals to 125 degree, angle C is equals to 55 degree, angle D is equals to again 125 degree, and angle E is your equals to 55 degree, and angle F is equals to 55 degree. ठीक है, so this is your
the value of all the angles, and this is your question number 3. So here, like in this way, you will use the property that you have learned for the parallel lines are cut by a transversal. Now in the question number 4, I am taking one part, the other part you will do yourself. So class 7, in the question number 4, it is given that find the value of x in each of the following figures if L is parallel to M. So parallel lines आपको given है that L is parallel to M, और ये line आपकी transversal हो गई. It is given that it is x and it is 110 degree. आपको x की value find करनी है. Now class 7, I want to tell you that in the exam it is important to draw the figure. Okay, whenever you have the paper exam, paper pen exam you will have. So in that the drawing the figure is important. फिगर ड्रॉ करने का बेनिफिट आपको ये मिलता है दैट आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड उसमें आपको इस एंगल को यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, या तो ये वाला एंगल यूज़ करेंगे या ये वाला एंगल यूज़ करेंगे, कोई भी रीजनिंग आप दे सकते हैं, कोई भी एंगल यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर मैं ये वाला एंगल यूज़ कर रही हूँ तो मैं इस एंगल को नेम कर सकती हूँ एंगल 1. ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज़ दिस, आई हैव टू यूज़ दिस, तभी मैं इस x पर पहुंच पाऊंगी. सो हेयर यू कैन सी दैट दिस 110 डिग्री एंड दिस एंगल 1 इज सप्लीमेंट्री, और यू कैन से दैट लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. और उसके बाद आपका L पैरेलल M है, तो एंगल 1 और एंगल x ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो इस ट्रांसवर्सल पर बन रहे हैं. और क्योंकि ये टू लाइंस पैरेलल हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टू लाइंस पैरेलल हैं तभी ये एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल x हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे. तो मुझे वही फाइंड करना है कि मुझे अपने वेरिएबल तक जाने के लिए किस प्रॉपर्टी का कैसे यूज़ करना है, ये आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए. ठीक है, सो यू विल राइट दैट अकॉर्डिंग टू फिगर angle 1 plus 110 degree is equals to 180 degree linear pair. Okay, so angle 1 is equals to 180 degree minus 110 degree is equals to 70 degree. Now angle 1 is equals to x is equals to 70 degree. Okay, what is the reason? Alternate इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, स्टार्टिंग में आप ऐसे लिख सकते हैं दैट गिवन L इज पैरेलल टू M. ओके, सो L इज पैरेलल टू M है, तभी आपने ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ की है. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 दैट आई वांट यू टू डू योरसेल्फ. इट इज सिंपल क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, in the given figure the arms of two angles are parallel. If angle ABC is equals to 70 degree, then find angle DGC, angle DEF. So you can see here that this is your ABC, है ना, 70 degree. Okay, you have to find this DGC. फर्स्ट पार्ट में आपसे DGC पूछा है, मैं अगर इसको एंगल 1 नेम कर दूं. ओके, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है एंगल DEF, अगर मैं इसको एंगल 2 नेम कर दूं. ओके, एंगल 2. तो आपको ये 2 एंगल्स फाइंड करने हैं एंड दे आर सेइंग दैट द आर्म्स ऑफ 2 एंगल्स आर पैरेलल. आर्म्स कौन सी हैं इन एंगल की जो पैरेलल है? ये वाली आर्म है BA, पैरेलल है ED के. ठीक है, दोनों ही आर्म्स पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो AB ED के पैरेलल है, और उसी तरीके से BC जो दूसरी आर्म है वो आपकी EF के पैरेलल है. ठीक है, तो जब आपकी ये BA ED पैरेलल हैं और ये BG या BC ट्रांसवर्सल है, तो आप देख सकते हैं कि 70 डिग्री और ये 1 कैसे एंगल हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो आप वहाँ पर लिखेंगे दैट AB इज पैरेलल टू ED एंड BG इज ट्रांसवर्सल. क्लास 7 ये ध्यान से सुन लीजिए, आप पहले ये लिखेंगे कि आपने कौन सी लाइन को पैरेलल कंसिडर किया, किस पर ट्रांसवर्सल थी. ठीक है, तो आप लिखेंगे BA इज पैरेलल टू ED एंड BG इज ट्रांसवर्सल या BC इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर 70 डिग्री या एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल 1 या फिर एंगल DGC आप लिख सकते हैं. एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DGC इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. ब्रैकेट में रीजनिंग लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. फिर लिखेंगे ऑल्सो BC इज पैरेलल टू EF, DE इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर angle DGC is equal to angle DEF
इज इक्वल टू 70 डिग्री, ब्रैकेट में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, बुक को साथ में रेफर करेंगे, यू विल गेट दैट, यू विल गेट द सॉल्यूशन। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, do yourself. Question number 6. Question number 6 says in the given figures below decide whether L is parallel to M. So वो कह रहे हैं कि इन फिगर्स में डिसाइड कीजिए, इन आपको फिगर गिवन है, ओके आपको देख कर डिसाइड नहीं करना है कि यहाँ पर तो लग ही नहीं रहा कि L पैरेलल M के, ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर इंटरसेक्ट कर जाएंगी, तो ये पैरेलल हो ही नहीं सकती। देखने से डिसाइड नहीं होता पैरेलल, ठीक है, मैथमेटिक्स में कुछ भी देखने से नहीं, आपको प्रूव करना है। सो आपको रीज़न करना है, लॉजिक उसका लॉजिक देना है, प्रूव करना है कि वो ऐसा है या नहीं विद रीज़न। दैट इज़ द मैथमेटिक्स, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, सो इन द गिवन फिगर हमें डिसाइड करना है वेदर एल इज़ पैरेलल टू एम। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएं, टू लाइंस पर फॉर्म हुए, या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड आपके सप्लीमेंट्री हो जाएं, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ थी उनका हम कन्वर्स अगर देखें, वाइस वर्सा अगर देखें, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आप कहते हैं कि टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, वही वाली कंडीशन यहाँ पर यूज़ करनी है आपको इन दिस क्वेश्चन नंबर 6। सो आई एम टेकिंग फर्स्ट पार्ट फॉर यू, the other part you will try yourself. In the case of doubt, just let me know. So question number 6 first part. So question number 6 first part I am taking. In the other part also what you have to do, you have to find the angles, है ना, आपको एंगल्स फाइंड करने पड़ेंगे, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फाइंड करना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड करना पड़ेगा, वो एंगल फाइंड करना पड़ेगा जिसकी प्रॉपर्टी को आप यूज़ करके, जो 3 प्रॉपर्टीज़ थी उनको यूज़ करके आप टू लाइंस को पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। तो वो एंगल आपको फाइंड भी करना पड़ेगा फिगर में। यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट में गिवन फिगर है उसमें मैं देख सकती हूँ कि L एंड M आर टू लाइंस, है ना, मुझे नहीं पता कि पैरेलल है या नहीं, आई हैव टू प्रूव दैट दे आर पैरेलल, ये आई हैव टू चेक ऑल दो, ठीक है, आई हैव टू चेक कि वो पैरेलल है या नहीं है। सो L एंड M आर टू लाइंस और N एक ट्रांसवर्सल है जो उनको कट कर रही है। ठीक, अब यहाँ पर मुझे सामने से साफ दिखाई दे रहा है कि 126 डिग्री एंड 44 डिग्री आपके क्या हैं, बेसिकली इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड हैं। ठीक है, जब भी कोई टू लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी कोई ट्रांसवर्सल, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड है। सो हियर वी हैव इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अब इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड से मुझे पता है कि मैं पैरेलल प्रूव कर सकती हूँ, लेकिन कब, अगर इनका सम 180 डिग्री हो जाए। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री ये हो जाए तभी होगा। सो वी हैव 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री। ठीक है, मैंने इनको ऐड करके देखा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, आई गेट 170 डिग्री। ओके, सो दीज आर नॉट सप्लीमेंट्री, या आप कह सकते हैं कि इनका समेशन जो है 180 डिग्री के इक्वल नहीं है, दीज आर नॉट सप्लीमेंट्री। तो प्रॉपर्टी तो ये थी कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री, देन द लाइंस आर पैरेलल। तो हमने यहाँ पर देखा कि इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज नॉट 180 डिग्री, सो दीज आर नॉट सप्लीमेंट्री, देयरफॉर L इज नॉट पैरेलल टू M। मतलब अगर आप पैरेलल को ऐसे कट कर देते हैं इट मीन्स नॉट पैरेलल, या आप लिख सकते हैं that L is not parallel to M. Okay, so in the similar way you will try by the other parts, and what you have to do, you have to get to that angle. Okay, you have to find that angle, get to that angle जिसको आप use करके property को वेरीफाई करेंगे, प्रॉपर्टी को यूज़ कर पाएंगे। सो गेट हैव अ ट्राई ऑन द अदर पार्ट्स, इन केस ऑफ डाउट जस्ट लेट मी नो। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर क्लास 7. डू कंप्लीट योर वर्क and stay happy and stay safe at home. Thank you for watching the videos. Share the channel, subscribe the channel, and enjoy your online learning. Thank you, class 7.